तो आप फोर्स को लेंथ और विड्थ के अलोंग रिजॉल्व कर दिया करो. इफ यू आर फाइंडिंग अ डिफिकल्टी, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर दें, केयरफुली देखना है ये किसकी लाइन है, लेंथ की ना, यस और नो, और ये किसकी लाइन है, विड्थ की. ठीक है. सो कैन वी से दैट ए बी इज अलोंग द लेंथ एंड सी डी इज अलोंग द विड्थ. तो जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करने में डिफिकल्टी आ रही है, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन रिजॉल्व द फोर्स अलोंग द डायमेंशंस, अलोंग द लेंथ एंड विड्थ. इसका रूल साथ ही लिखो, इसका रूल लिखो. अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाता तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. प्रॉब्लम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का था, ऐसे ही है ना. तो अब इसका रूल लिख लो. लिखो कि इफ एन ऑब्जेक्ट, मेरे साथ लिखते जाओ, if an object is rectangular and finding perpendicular distance appears to be difficult, and finding perpendicular distance appears to be difficult. अच्छा, मोमेंट के वर्कशीट्स में कल प्रिंट करवा के ले आऊंगा. वेक्टर्स के कितने हो गए, नहीं किए? चलो वो करो ना. हो नहीं रहे तो उसके वीडियोस तो मैंने भेजे हुए. चलो फिर मैं खुद करवा दूंगा. इफ एन ऑब्जेक्ट, आपके हुए या नहीं हुए फातिमा बेटा? थोड़े से हो गए. किस किस के वेक्टर्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत हो गए. चले, अगर नहीं हो रहे तो मैं खुद करवा दूंगा वीकेंड पे. If an object is rectangular and finding perpendicular distance appears to be difficult, then resolve the force, along the dimensions. What are dimensions? Dimensions are, you should tell, length and width. So for any question, whenever you find finding perpendicular distance difficult, resolve the force along the width and the length. Now here, this angle is 30. What about this angle? क्या कहते हो? 30. This angle is 30. What about this angle? 30. This will be 30. And they are called corresponding angles because the lines are parallel. The lines are parallel. This line and this line, are they parallel? These two lines are parallel. Length, length, length. They are parallel. And this line is parallel to the weight key line. So this angle will be 30. This is our first step. The second step is resolve the weight along the length and perpendicular to the length, but at the center of gravity. If weight is acting here, where will be the components of the weight? The components of the weight will be, one of the components will be here. Let's call that Wx. This Wx will be, what it will be? This Wx will be 100 cos 30 or sin 30? 100 cos 30. What about this one? Wy. बताइए ये क्या होगा? 100 sin 30. So 100 cos 30, 100 sin 30. ठीक? Now instead of W, find moment of its components. Sum of moments of components will be the moment of force. However, you have to care about clockwise and anti-clockwise. Wx का moment clockwise होगा या anti-clockwise होगा? Wx का moment is clockwise or anti-clockwise? When you are considering Wx, forget about other forces. If Wx is pushing this object or pulling this object, it will pull in this way. So it's clockwise or anti-clockwise? क्या ख्याल है? Wx का moment, pivot is here. So it is clockwise. इस पे लिख दो clockwise. Moment of Wx is clockwise. Moment of Wy, clockwise या anti-clockwise? Wy. बेटा ये है ना pivot. ये है pivot. इसका moment क्या होगा? Clockwise.
मुझे लग रहा है इसका भी क्लॉकवाइज है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, हो गया। आप देखें क्या ख्याल है? डब्ल्यू एक्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, आई थिंक डब्ल्यू एक्स का हम गलत नहीं कह रहे, जरा और केयरफुली देखो, सोच लो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एक सेकेंड। डब्ल्यू एक्स हाँ क्लॉकवाइज ही है, दोनों का ही क्लॉकवाइज। सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड व्हाट अबाउट डब्ल्यू वाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये भी क्लॉकवाइज। अगर दोनों का है क्लॉकवाइज तो फिर तो ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ डब्ल्यू, लिखते जाओ मेरे साथ, moment of W will be moment of Wx plus moment of Wy. Moment of W will be moment of Wx plus moment of Wy. कोई confusion इसमें? दोनों का moment क्या है? Clockwise. अब 1 second. What is the perpendicular distance of Wx from the pivot? You will tell. Perpendicular distance of Wx from the pivot. What it is? Wx. बेटा Wx का pivot से perpendicular distance कितना होगा? This is 20, half of that. बेटा एक बार देख लें, this width is 20 centimeter. Wx का perpendicular distance कितना होगा? It is 10 centimeter. एक बार देख लो, आ गई समझ? ये हो गया Wx और ये हो गया इसका perpendicular distance. Wy का perpendicular distance कितना होगा बताओ? It is total 40 है ना, तो उसका half of that is, this will be 20. हाँ जी, अब Wx का मोमेंट और Wy का मोमेंट, both of them are clockwise, so it will be Wx is 100 cos 30. बात में बेटा समझ आई है या कंफ्यूजिंग हो गया? महमून तुम्हें थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी समझ आनी चाहिए। देखो ये Wx हो गया ना, ये Wy हो गया। Wx का मोमेंट, this is Wx and this is a perpendicular distance. This is Wy and this is a perpendicular distance. 10 centimeter, 20 centimeter. So पिछले क्वेश्चन पे उसके अंदर तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा निकाला था कि जो हाँ हेड होता था, हाँ, तो यहाँ भी ऐसे निकाल रहे हैं, वहां पे हमने फोर्स का निकाला था, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स का निकाल रहे हैं, बिकॉज फोर्स का निकालना इज बिकमिंग डिफिकल्ट। हाँ जो कंपोनेंट है हाँ, वो ऐसे है ना, ऐसे है, ये हाँ ये तो हम तो ये तो वही काम से अगर हम वेट के साथ कर लेते हैं, नहीं कर सकते, वेट को पीछे नहीं कर सकते। क्यों सर? देख लो वेट यूं चला जाएगा यहाँ पे, तो वो नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा काम हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर इससे सॉल्व कर लेंगे। वो नहीं ठीक है, हाँ हाँ, वो लंबा काम हो जाएगा। ये समझ आ गया कंपोनेंट्स वाला? अच्छा अब ये समझ लीजिए कि आपने जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि then resolve the forces along the dimension, हाँ, डायमेंशन मतलब लेंथ और वेट, लेंथ और ये वेट। ये आपने रिजॉल्व कैसे किया? ये रिजॉल्व ऐसे किया कि वेट यहाँ पे था, एक उसका कंपोनेंट मैंने लेंथ के साथ बना दिया और एक वेट के साथ, एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे? दो बनाते हैं हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक होता है लेंथ के अलाउंग और एक होता है वेट के अलाउंग। तो अगर कोई तीसरी डायमेंशन हमारे पास हो, नहीं होगी, नहीं होगी, दो ही होगी। दो ही होंगे। हाँ हाँ बेटा बताएं। जी जी बेटा, जी जी। अच्छा बच्चों, 100 cos 30 और मल्टीप्लाई किससे होगा जल्दी बताओ? 100 cos 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। Wy का क्या होगा? 100 sin 30 इंटू 20। सो इसका आंसर आ जाएगा 866, बताते जाओ, और इसका आंसर हो जाएगा 1000, तो 1866 न्यूटन सेंटीमीटर, एंड इट इज क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। अगर ये समझ आ गया तो इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन दूंगा जो आप करके देंगे, ठीक? इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं और आपने सही करना है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो इट्स योर चॉइस, द आंसर शुड बी 1866। किसी का आंसर 1866 अगर था तो वो ट्रीट्स क्लेम कर सकता है, नहीं था ना? हाँ बताओ।
Yes, you can use meters or centimeters. That is not an issue. But आप मीटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला सबने ठीक करना है. क्वेश्चन ये है कि लिखो a rectangular box, थोड़ा क्विकली. A rectangular box was falling when Mujtaba spotted it by applying a horizontal force as shown. There was a rectangular box, it was falling, and Mujtaba held it by applying a horizontal force. And the drawing for that situation is, this was the box which was falling. The box was rectangular. So this was the rectangular box that was falling, and Mujtaba supported it by applying a horizontal force at this corner. This F is the horizontal force applied by a student or Mujtaba to hold the box. The box was falling. Is that clear now? The box was A, B, C, D. At which point you will have the pivot. Okay. Pivot kahan pe hoga? D. Pivot D. Because it will fall and rotate about D. So D is the pivot. And this angle was, at this instant, the angle was 50 degrees. This angle was 50 degrees. And weight of the box was, this is the center of gravity. And at the center of gravity, the weight was, it was 5.0 Newton. The dimensions of the box were, this length was 200 centimeter, and this width was 50 centimeter. Width of the box was 50 centimeter, and the length of box was 200 centimeter. The box was falling. It was falling due to its weight. Then Mujtaba applied a force to hold the box. कोई confusion इसमें? Situation समझ आ गई? Question का first part. Calculate moment of the weight. Calculate moment of the weight at the given position. Calculate moment of the weight about pivot D in the given position. अब मुझे लगता है हो जाएगा. अगर आपने कोई और मेथड ट्राई करना है, देखिए मैंने तो कहा है कि आप क्या करें, वेट को डायमेंशंस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया करो. लेकिन अगर आपने कोई और मेथड ट्राई करना है, इट्स योर चॉइस. द आंसर शुड बी करेक्ट. Calculate moment of the weight W about the pivot D. Best of luck. देखते हैं जी सबसे पहले कौन करता है. इसके लिए आपको ट्रीट नहीं मिलेगी. Because now you know that. देखते हैं जी सबसे पहले कौन बंदा इसको सॉल्व करता है. देखो इस पे अगर हम फाइंड करते हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पेपर में ना दिमाग खपाना पड़ेगा. पेपर में इतना दिमाग होता ही नहीं है. पेपर में पता है क्या होता है? प्रेशर होता है. पेपर में सिंपल चीजें भी इनकरेक्ट हो जाती हैं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना डिफिकल्ट है. इजी क्या है? कंपोनेंट्स. ठीक है, तो क्या करो, वेट को रिजॉल्व कर दो लेंथ और वेट के अलोंग, देन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन.
तो ये कंपोनेंट का क्या रिलेशन होता है मोमेंट? कंपोनेंट्स का ये रिलेशन होता है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू रिजॉल्व अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, देन इफ यू ऐड द, हाँ, जो कंपोनेंट्स का मोमेंट है उसको अगर ऐड करोगे वो फोर्स का मोमेंट होगा. लेकिन कंपोनेंट्स का मोमेंट ऐड करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ख्याल करना है. हो गया? और किसका हो गया? अब तो सिंपल हो गया ना. वेक्टर्स के क्वेश्चंस के लिए मुझे वीकेंड पे क्लास करनी पड़ेगी या वीडियो से हो जाएंगे? हो जाएंगे, ट्राई करो. हो गया? बताएं. यस, आई विल. This one, please. Yes. Now we are doing moment. Vectors तो कब का हो गया? So vector addition and vector resolution is included. आपके मंथली में होगा errors, uncertainties और vectors, vector addition और resolution of vectors. कितना मार्क्स का होगा? 30 marks good enough होंगे. अच्छा बच्चों, हाफ क्वेश्चंस होंगे एरर्स अनसर्टेनिटीज के और हाफ क्वेश्चंस होंगे वेक्टर एडिशन और रेजोल्यूशन के. ठीक है? अच्छा जी, किस किस का हो गया ये वाला पार्ट? हो गया मुस्तफा? तब से एंगल ही निकल नहीं निकल रहा, निकाल लेते हैं. अच्छा देखो बच्चों, ये एंगल है 50. ठीक है? अब क्या करेंगे, यहां पे बना देंगे, ये लाइन किसके अलॉन्ग है? विड्थ के अलॉन्ग ना. ठीक है? और ये लाइन लेंथ के अलॉन्ग. कोई कंफ्यूजन इसमें? ये लाइन हो गई लेंथ के अलॉन्ग और ये लाइन हो गई विड्थ के अलॉन्ग. अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं. ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है? 50. यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो. हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल. आइए समझ, दोबारा बताऊं या ठीक है? ठीक है. देखें, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए. अच्छा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गया? आपस में पैरेलल. ठीक. सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल. अगर ये एंगल 50 होगा तो ये एंगल कितना होगा? क्या ख्याल है? ये एंगल भी होगा 50. यहां तक समझ लो, फिर आगे चलते हैं. आगे समझ. देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका और इसका एंगल अगर 50 होगा तो इसका और इसका एंगल भी क्या होगा? ये भी पैरेलल है ना, तो वो भी होगा 50. अब ये ओवरऑल एंगल है 90. ये ओवरऑल एंगल क्या है? 90. अगर ये 50 होगा तो साथ वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? 40 ना. ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये 50 और ये 40, तो ये वाला एंगल फिर क्या होना चाहिए? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये 40, ओवरऑल ये 90 है ना. ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एंगल क्या होता है? 90 होता है ना. तो फिर ये 50 बन गया. देख लो एक बार. ठीक. तो एंगल फाइंड करना ही मेन ट्रिक था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी. जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा. कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब वेट के कंपोनेंट्स कहां पे होंगे? एक कंपोनेंट लेंथ के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट विड्थ के अलॉन्ग. ठीक हो गया? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको शेयर जल्दी कर दूंगा. ये क्लास एक बार दोबारा देखनी है. ठीक है ना? अब देखें, अब वेट का एक कंपोनेंट ये हो गया. इसको क्या कहेंगे? कंपोनेंट अलोंग द विड्थ या अलोंग द लेंथ? कंपोनेंट अलोंग द लेंथ. और इस तरह की रेजोल्यूशन कब करनी है? इस तरह की रेजोल्यूशन तब करनी है when you are finding difficult when you are having difficulty in finding perpendicular distance. जब perpendicular distance फाइंड करना डिफिकल्ट होगा फिर ये काम करेंगे. अब ये हो गया wx और ये क्या हो जाएगा इस तरफ वाला? wy. ये रिजॉल्व करने का मेथड आ गया समझ? You have resolved the weight along the length and the width, and the components are perpendicular to each other. Wx along the length, Wy along the width. अब मुझे बताएं perpendicular distance क्या होगा? ये है अगर 50, अगर ये है 50 तो ये कितना होगा? 25. So this distance of Wx, मैमून ये कितना होगा? 25 और सेंटीमीटर ना. अच्छा, और ये है 200.
So what will be the distance of this pivot from WY? दुआ ज़ैनब बेटा आप बताएं ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? दुआ ज़ैनब सामने देखें ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा? ये पिवट ना, पिवट से WY का डिस्टेंस बेटा कितना होगा? 100. So it's 100 सेंटीमीटर. मेमून WX का मोमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पिवट यहाँ पे मुस्तफा देखो जरा, मुस्तफा WX का मोमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा मैं एक चीज जल्दी से बता दूं फिर आगे चलते हैं. क्लास में अगर मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चंस कराऊं तो इसको कहते हैं बच्चों को लॉलीपॉप देना. इसमें यह है कि आप लोग बहुत खुश होंगे कि हमारा फिजिक्स तो आसमान पे है, लेकिन असल में आपको फिजिक्स नहीं आता होगा. क्लास में मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका लेवल सब कुछ डेवलप हो. तो क्लास में हमेशा हमें करने चाहिए थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ताकि आपका जो लेवल है वो थोड़ा बेहतर हो सके. समझ आ गई बात? अच्छा अब ये हो गया WX, ये हो गया WY. WX होगा क्या? 5 cos या 5 sin? जल्दी बताएं. 5 cos 50. इसी तरह ना, कौन सा 50? दिस वन, दिस वन. ये वाला क्या होगा? 5 sin 50. फातिमा बेटा आप बताएं इसका मोमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. मैंने बना भी दिया क्लॉकवाइज. इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज. कंफ्यूजिंग हुआ है या आ गई है यहां तक समझ? आ गई है. अच्छा अब क्लॉकवाइज को प्लस कर लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस. अगर ओवरऑल आंसर होगा, अगर ओवरऑल आंसर होगा पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज, अगर ओवरऑल आंसर होगा नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज. ओवरऑल आंसर पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज, ओवरऑल आंसर नेगेटिव तो एंटी. क्लियर? अच्छा अब मोमेंट ऑफ W, moment of W is positive for clockwise. Moment of WX minus moment of WY. आगे समझ. अब WX का मोमेंट होगा क्या? 5 cos 50 and it will be multiplied with कितना हो गया उसका डिस्टेंस? 25 ना, 25 सेंटीमीटर माइनस 5 sin 50 इंटू क्या होगा बेटा? इंटू 100 सेंटीमीटर. बेटा इसका आंसर बता दें. 95.76 नेगेटिव या पॉजिटिव? इसका नहीं सर. हाँ ओवरऑल बताओ ना. 95.76 पॉजिटिव. पॉजिटिव, पॉजिटिव वैसे लग नहीं रहा है ऐसे. नहीं उसके बाद नेगेटिव आता है ना, सॉल्व करने के बाद दो. मुझे ओवरऑल आंसर बताओ ना, फाइनल आंसर. 3.8 Minus 303 point. माइनस 303, 303.3264 न्यूटन सेंटीमीटर. अच्छा नेगेटिव आंसर क्या शो कर रहा है? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. 303.3264 Newton centimeter and anti-clockwise because we took negative sign for anti-clockwise. कोई confusion? नेगेटिव साइन किसका था? एंटी क्लॉकवाइज का. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो, आप खुद करेंगे. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मुज्तबा की फोर्स फाइंड करो. कैसे मैं बताता हूं. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा के. यू नो दैट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था फ्रॉम ओ लेवल. सो सेकंड पार्ट इज moment of F is equal to moment of W. Find it. Best of luck. हाँ -5 sin 50 into 100 to पहले लिख दिए. उससे कुछ नहीं होता. फिर आंसर ऑर्डर मैटर नहीं करता. नहीं बेटा सही आएगा. क्यों आएगा वाली? ऑर्डर से कुछ नहीं होता. F फाइंड करो. अब F फाइंड करते हुए चैलेंज क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. F फाइंड करते हुए चैलेंज क्या होगा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बात समझ आ गई कि F का मोमेंट एंड वेट का मोमेंट आर इक्वल. सही है? F का मोमेंट एंड वेट का मोमेंट आर इक्वल. Weight का moment is anti-clockwise. F का moment is clockwise. The two moments are equal. Using that, find F.
एंड अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर। हो गया। अच्छा बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन यहां से आगे कल करेंगे बिकॉज टाइम हो गया। टेक केयर बच्चों, ये मैं कल करवा दूंगा ना।